नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं बुलियन मार्केट को लेकर कि बुलियन मार्केट में क्या स्थिति बन रही है, डिमांड का सिनेरियो क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है और प्राइस का आउटलुक क्या है। आज हम बात करेंगे सोने, चांदी और डायमंड को लेकर। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। सोमसुंदरम PR हैं, रीजनल CEO हैं WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के, मितेश खिमजी हैं खिमजी ज्वेलर्स से, और शुभांकर सेन हैं MD हैं सेनको गोल्ड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सोमसुंदरम सर, आपके पास आते हैं। मेरा सवाल आपसे ये होगा, किस तरह का डिमांड सिनेरियो फिलहाल बन रहा है? पिछले साल सेंट्रल बैंक की डिमांड अच्छी रही थी, इस साल आप लोगों का सेंट्रल बैंक से किस तरह का डिमांड रहने का अनुमान है? साथ ही हेज फंड्स की मांग को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है? सोमसुंदरम सर। We saw 2023 calendar year, it was 5% down, but within that, if you see, the central bank demand has been very strong. 1,038 tons was the total central bank demand, which is slightly lower than last year, 1,082 tons, but it's still in absolute terms substantial. So it is the second year when it is more than 1,000 tons. Whether it will continue to be is something which we cannot forecast, but we still think central bank demand in 2024 also will be very strong. But when it comes to jewelry and bars and coins, we think that there will be some softness in jewelry because of high prices. But bars and coins and demand could come back because both India and China now are both fully opened up, and there is undercurrent of strong interest in gold. सोमसुंदरम सर, एक और सवाल आपसे ट्रिगर को लेकर होगा। अब फेड चेयरमैन का बयान आया है कि वो ब्याज दरें, जो मार्केट ब्याज दरों में कटौती को लेकर बाजार जो अनुमान लगा रहा है उससे कम कटौती होने की संभावना है, और साथ ही जब तक महंगाई कम होने के पुख्ता सबूत उन्हें नहीं दिखेंगे, पुख्ता सब्सटैंशियल एविडेंसेस नहीं दिखेंगे, तब तक वो दरों में कटौती शुरू नहीं करने वाले हैं। ये एक जो बयान आया है उससे लग रहा है कि मध्य तक, जो इस साल के मध्य यानी मई जून से पहले दरों में कटौती संभव नहीं दिख रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आगे ऐसे कौन कौन से ट्रिगर होंगे सोमसुंदरम साहब जो गोल्ड की कीमतों पर यहाँ से असर डाल सकते हैं? Prices, as you know, is a complex combination of factors. Interest rates, US interest rates is one very important feature. And now there are some analysts who say that the rate cuts we are going to see, Fed rate cuts in 2024 has already been factored in. But there are some which say that you will see the impact of it when it really happens. So that is a very positive for gold. When rate cuts happen, cost of holding gold comes down. Therefore, people can hold more gold in that sense. When it comes to what are the other drivers of prices, the geopolitical situation is very fluid at this moment of time. We still have issues all over the place. We are also going to have an elections in US, and of course, prior to that, within India also, we are going to have an elections. So there are going to be lots of changes in the geopolitical scenario. How they play out, as it seems now, everything will turn to be positive because you're not able to see a very clear picture. So there will be a lot of whenever you are uncertain, you go to gold. Therefore, you will have probably a positive impact on the price. Having said that, we may still see volatility because there are, the issues about the gold US economy, hard landing, etc., are now not being discussed that much. They're not. There are strong arguments that the growth will come back. So this might act as a headwind for gold. So as a complex array of factors, you could see overall that there is definitely a headroom for gold to move on. Whether it will happen in 2024 or 2025, we'll have to wait and see. But what we see is that given all that the central banks are bought at these prices, you can only expect that there is definitely headroom for growth. मितेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। फेड चेयरमैन के जो बयान है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है FOMC में बैठक के बाद, क्या लग रहा है? आप इसके बाद सोने की चाल को कैसे देखते हैं? किस तरह की चाल रहेगी? क्या सोने में आपको यहाँ से तेजी दिख रही है क्या? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार ET स्वदेश के दर्शकों को। देखिए, फेड का जो स्टेटमेंट आया है, वी फील दैट
मार्केट थोड़ा राइज हो सकता है. इट कैन बी ए बुलिश मार्केट कीपिंग इन माइंड द फेड चेयरमैन स्टेटमेंट. एंड यही हम देख रहे हैं बिकॉज अभी भी मैरिज सीजन डोमेस्टिकली भी चालू है और इंटरनेशनल में भी बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट पर्टिकुलरली वी आर सीइंग इन द एरिया ऑफ इन द पर्शियन गल्फ. आई फील दैट ऑल दिस फैक्टर्स ये सब मिलके ओवरऑल वी आर सीइंग एट हायर गोल्ड रेट्स इन द फ्यूचर. मितेश जी, और चांदी के प्राइस को लेकर आपका क्या अनुमान है? क्या चांदी में यहां से तेजी दिख रही है क्या, क्योंकि चांदी काफी समय से एक दायरे में घूम रही है? सिल्वर में देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप इंडियन रुपीस में देखें, आई ओवरऑल सी द मार्केट टू बी होवरिंग बिटवीन 72 से लेके ज्यादा से ज्यादा इट कैन गो अराउंड 76-78 हजार तक. आई डोंट, उससे ज्यादा तेजी तो मेरे को नहीं दिख रही है सिल्वर में पर्टिकुलरली. मितेश जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा डिमांड को लेकर. आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है, किस तरह की डिमांड है? क्या इस शादी के सीजन में लोगों की खरीदारी अच्छी हो रही है? क्या रिपोर्ट आ रही है डिमांड को लेकर? देखिए पहले तो इस बार जो बजट आया बिकॉज इलेक्शन ईयर है, इंटरिम बजट है, तो इट वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन. ज्यादा कोई पॉलिसी चेंजेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हुआ नहीं. दैट वाज रिडक्शन इन ड्यूटी. सो गोल्ड प्राइसेस आर क्वाइट स्टेबल एंड इनफैक्ट अपर ट्रेंड में है. बट जो कि अभी जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया में काफी शादियां होती है, तो हम लोग भी अपने स्टोर्स में काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज परचेज. सो ये क्वार्टर तो अभी फिलहाल काफी अच्छा जा रहा है. बट अगेन देखिए ये साल जो है दैट इज 2024, ये एक लीप ईयर है. एंड इस हिसाब से शादी की डेट बहुत कम है आफ्टर मार्च टिल अबाउट नवंबर. तो नॉर्मली हमारे हिंदू शास्त्रों में जो शादियां की डेट होती है ज्यादातर अप्रैल में, जून जुलाई जो सबसे ज्यादा शादी होती है, वो टाइम में ज्यादा शादियां नहीं है. तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद वाले क्वार्टर में दैट इज फ्रॉम अप्रैल में जून से लेकर टिल अबाउट अक्टूबर गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम रहेगी बिकॉज इंडियन गोल्ड मार्केट जो है ये प्राइमरीली मैरिज ड्रिवन है. ज्यादातर परचेजेस जो होते हैं ये शादियों पे होते हैं. तो अभी तो फिलहाल काफी शादियां हो रही है मार्च तक, बट मार्च के बाद आई थिंक टिल अबाउट अक्टूबर हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड में थोड़ी कटौती हो सकती है गोल्ड में. शुभांकर सेन जी, आपसे मेरा सवाल होगा बजट से जोड़कर. बजट में जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए रूरल इंडियाज को लेकर, सोशल सिस्टम को ठीक करने को लेकर जो चीज़ें ऐलान हुई, उससे फ़ायदा पूरी रूरल इंडिया को होगा और उस जो कन्वर्जन देखने को मिलेगा वो डिमांड में देखने को मिलेगा. तो क्या आप उम्मीद करें जो अंतरिम बजट में जो कुछ ऐलान हुए और जो ट्रेलर फुल बजट का दिखाया गया है उससे रूरल इंडिया को फ़ायदा होगा और आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री को डिमांड कन्वर्जन के तौर पे देखने को मिलेगा, वहाँ से डिमांड ड्राइव हो सकती है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो बजट में सरकार जिस हिसाब से आइडियाज, इनिशिएटिव्स बताए, तो उसमें जैसे आप बता रहे थे कि एग्रीकल्चरल मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम का ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ नए जनरेशन, यंग जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा जो अर्बनाइजेशन, ये सारा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहे हैं सरकार, तो उसके लिए देश का तो उन्नति होगा, बट उसके साथ साथ लोगों के हाथ में जैसे वेल्थ क्रिएट होंगे, पैसा आएंगे, उस हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लॉन्ग टर्म में अपना ज्वेलरी इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ता जाएगा, नॉट ओनली इन दी अर्बन सिटीज बट रूरल मार्केट्स में भी, जो एक बड़ा ड्राइवर होता है ज्वेलरी के लिए, वहां पे भी अच्छे खासे ग्रोथ दिख सकते हैं इन द कमिंग 1-2 साल में. और उसके साथ साथ सरकार ने ईस्ट इंडिया को भी ज्यादातर हिसाब से फोकस किया है, तो ईस्ट में जो एग्रीकल्चरल फोकस हुआ या जो भी एनर्जी फोकस हुआ, वो सारा चीजों का ऑल ओवर द कंट्री में ग्रोथ देख पाएंगे. और इस हिसाब से गोल्ड में अगर देखें, आज नॉन फार्म पेरोल का अनाउंसमेंट होने वाला है. कल जॉब डेटा निकला था, उसके बाद गोल्ड का ऊपर की तरफ गोल्ड चले गए. तो अगर देखा जाए कि अगर नॉन फार्म पेरोल्स, अभी इंटरेस्ट रेट का बारे में भी फेड बोल रहे हैं कि उतना जल्दीबाजी में वो लोग इंटरेस्ट कट नहीं करेंगे, मगर इट ऑल डिपेंड्स. बहुत मतलब कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहा है. तो गोल्ड का अपसाइड में 65,000 और डाउन साइड में 62,000, आई थिंक ये रेंज में गोल्ड चलेगा, अनलेस कुछ ज्यादा कुछ एक ड्रास्टिक कुछ सिचुएशन आ जाए. मितेश जी, अब आपसे मेरा सवाल मार्केट में ट्रेंड को लेकर होगा. ज्वेलरी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? शॉपिंग में क्या सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी तो जो कि शादी का सीजन चल रहा है, तो ज्यादातर वेडिंग ज्वेलरी की सबसे ज्यादा डिमांड है.
और इस बार हम लोग जो अभी ईस्ट इंडिया में देख रहे हैं एक नया ट्रेंड जो कि पहले नहीं था। नॉर्मली यहाँ पे जो मार्केट है वो येलो गोल्ड ज्वेलरी की मार्केट थी, बट पिछले लगभग 6-7 महीने से हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो लोग ज्यादातर अभी ढला हो रहा है टुवर्ड्स एंटिक ज्वेलरी है कि, और कुंदन पोल्की में काफी मूवमेंट है, इवन कलर स्टोन्स में। प्लस इवन ये शादी के सीजन में हम लोग काफी अच्छा डिमांड देख रहे हैं हमारे डायमंड काउंटर्स पे। इवन मिडिल क्लास लोग हैं जो दे आर बाइंग डायमंड, अफोर्डेबल डायमंड ज्वेलरी। सोमा सुंदरम सर, और आपसे अब मेरा सवाल गोल्ड मार्केट में मौजूद जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह की संभावनाएं भारत के गोल्ड के मार्केट में आप देख रहे हैं? The Indian market is the second largest market in the global gold market. Therefore, it's very important not just for India, but also for the global gold market. That's very important. Now, the strengths of the Indian gold market are its, the way the jewelry sector has grown over the years, and where gold is available in every nook and corner. That's a big strength. There is no doubt about it. Hallmarking has been introduced, again, a very big strength. The digital India, which has not fully benefited the gold industry, that's again a big strength for the industry. If you really see, the organized sector is growing very well, and you're having many serious players actually coming for an IPO, which means the governance standards, the image of the industry, everything keeps going up. So these are all actually good positives. They are opportunities for India. In terms of challenges, we definitely are facing challenges in terms of the image of the industry. We have challenges in terms of high duties, which is causing a lot of issues around gray market and things like that. So, and also we are not playing a very significant role in the global discussions around many things that affects the gold market. We are very internally focused at this moment of time. And there is also, on top of all this, there is a big opportunity for India to actually showcase its handcrafting skills and become a very big player in the export market. But for that, you need to play a bigger role in the global market itself. You need to talk about things which are sustainable sourcing, ESG. We are still not there. So I would see that these are probably some of the issues that could turn into opportunities. And if I were to put one thing that is a big thing for the Indian industry, I think it should improve its image. सोमा सुंदरम सर, आपसे मेरा एक सवाल ये भी होगा, गोल्ड डिमांड को ड्राइव करने वाले यहाँ से ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, और क्या इस फैक्टर में आगे चलकर बदलाव भी दिख सकता है क्या? See, the biggest influencer of demand is economic growth, incomes. A 1% increase in income leads to a 0.9% increase in demand over a long term. So the biggest influencer is income. In the short run, when prices rise, people wait. So in the short run, prices can be a headwind or a tailwind, depending on whether it goes up or comes down. But significant influencer is income. And India is growing. There is no doubt about it. Therefore, you are going to see demand actually resetting itself. We have so far seen, despite high prices, India buying around 700 to 800 tons since 2019. And prices have nearly doubled since then. India continues to buy 700 to 800. Now with the economic growth, now with lots of changes, reforms that have come in the industry, we should be prepared to see India resetting itself to 800 to 900 tons. सोमा सुंदरम जी, एक और आपसे सवाल ये है कि क्या भारत में गोल्ड को लेकर सरकार की पॉलिसी से इंडस्ट्री पर असर हो रहा है? क्या इससे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के कामकाज पर भी कुछ असर हुआ है? और आप पॉलिसी में किस तरह की बदलाव की मांग करते हैं? क्योंकि अंतरिम बजट में तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, जब फुल बजट में अभी से अगर डिमांड आप लोग रखेंगे तो हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले। सोम सुंदरम सर, आपका इस पर क्या कहना है? Well, it doesn't affect our work, or I would even go to the extent of saying it doesn't affect the work of the industry. These are reforms which are much needed. And you see around us, there are so many changes. And in fact, if you look at the changes that have happened in the financial markets and digital payments, I don't think this industry has seen that scale of changes. So first of all, these changes are very good. Second, these changes still are yet to come.
for this industry, they have not been very good. The change, they have not been very fast. The change that have happened, like hallmarking, etc., are much needed. So I wouldn't say it has affected our work, but what I would say is it has actually, helped the industry now to have a common platform. Even today, many small jewelers are also saying that because of hallmarking, the issue of trust is slowly going away. Now they can concentrate on designs, they can concentrate on consumer service, etc. Earlier, that was not the case. You always assumed that a big jeweler means, there's more trust, and small jeweler means you won't get pure gold. That's gone off. Like that, you will have many more such, platforms that are coming through digital and things like that, which will make the small players have a bigger role in this growing industry. Second, the government is doing a lot of reforms on making India a preferred choice for, jewelry in the world. Now, small jewelers can definitely participate in this. We've got infrastructure like IIBX, which now jewelers can directly import gold. So these are changes which have not seen their full potential yet. But in the next 5 years, if you look around, you will see that these changes make life a lot easier for the Indian gold industry and allow it to play a very, very significant role in the global market. मितेश जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा स्टोन मार्केट को लेकर। आप ग्लोबली देखेंगे तो स्टोन का मार्केट काफ़ी मैच्योर है। इंडिया में उस हिसाब से देखें तो हम काफ़ी पीछे हैं, और जबकि स्टोन की कई सारी ऐसी वैरायटी और क्वालिटी होती है जिसके दाम मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से, कारोबारियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टोन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएँ हैं, लेकिन ज्वेलर्स उस मार्केट को टैप नहीं कर पा रहे हैं। स्टोन को उस तरह से प्रमोट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी ज्वेलरी में सिर्फ प्लेन ज्वेलरी, जैसा आप भी कह रहे थे, येलो मेटल्स में अगर जब तक कोई स्टोन्स नहीं आता तब तक उसकी खूबसूरती भी नहीं दिखती। तो स्टोन मार्केट में किस तरह का पोटेंशियल आपको दिख रहा है? यस, देखिए, हमारे ईस्ट इंडिया में पहले तो स्टोन्स का इतना चलाव था नहीं, स्टोन स्टडेड ज्वेलरी का। बट ऑफ लेट, जैसे मैंने कहा, पिछले 6-7 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में काफी चाहिदा है ज्वेलरी, प्लस डायमंड्स भी है, पोल्की कुंदन भी है। तो मुझे लग रहा है ये एक नया मौका है ज्वेलर्स के लिए, और एक नया मार्केट भी खुलेगा इसमें। इट्स अ गुड स्कोप ज्वेलर्स लोगों के लिए और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। मितेश जी, एक और सवाल आपसे डायमंड को लेकर मैं जानना चाहूँ कि डायमंड मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है? क्या नेचुरल या लैब डायमंड की ज्यादा डिमांड आप यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ज्यादा लैब ग्रोन डायमंड्स में बिलीव करता नहीं, बिकॉज आज हम अगर डायमंड्स की बात करें तो डायमंड की जो इंपॉर्टेंस है, प्राइसेस है, ये इसीलिए है बिकॉज डायमंड इज रेयर एंड इट इज माइंड। तो जैसे कहा जाता है कि इट टेक्स 1 billion years टू मेक अ डायमंड, एंड वही चीज अगर आप लैब ग्रोन देंगे तो वहीं पे उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और हमारे यहाँ भी मैक्सिमम डिमांड जो है वो नेचुरल डायमंड्स की है, एंड ओडिशा इज अ ग्रोइंग मार्केट फॉर डायमंड ज्वेलरी। एंड यही हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल से, इनफैक्ट कोविड के बाद से बहुत अच्छा सेल्स है हमारे काउंटर्स में डायमंड ज्वेलरी का। और मेनली ये जो बायर्स है, दीज आर ऑल फॉर द डेली वेयर डायमंड ज्वेलरी ज्यादा चलती है यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एंड एफोर्डेबल डायमंड ज्यादा चलते हैं, नेचुरल डायमंड्स। मितेश जी, एक सवाल आप ये बताइए कि सोने चांदी के जो खरीदार है, करंट भाव पर, मौजूदा जो भाव है, वहाँ पर उनको खरीदारी इन भाव पे करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? उनको और नीचे का भाव देखने को मिलेगा? एक एक्सपर्ट के तौर पे बताइए, ज्वेलर के तौर पर नहीं। देखिए, गोल्ड एनी डे एक वेरी वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन है, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 1.5-2 साल का हो। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इवन ऑफ द लास्ट 100 years गोल्ड हैज ऑलवेज गिवन यू अ रिटर्न बिटवीन 9% से लेके 12% के अंदर ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड रिटर्न देता है। बट मेरा कहना है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट ना करें। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। और अगर आप एनीथिंग होराइजन आपका 2 साल से ऊपर है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोपोजिशंस टुडे, एंड गोल्ड नेवर फेल्स एक्चुअली। और ये हम देख चुके हैं, ये खाली इट्स नॉट बाय एनालिसिस, ये हम 100 साल की हिस्ट्री अगर देखें तो गोल्ड हैज ऑलवेज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। और अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर आपका होराइजन मिनिमम 1.5-2 साल के ऊपर हो तो यू कैन ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स।
क्या आपको डायमंड में भी इस तरह की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखें तो दाम 20% तक गिर गए थे। क्या लग रहा है आपको आगे इसके दाम बढ़ेंगे या स्थिर रहेंगे? क्या कहेंगे मितेश जी? हम लोग ये साल ज्यादातर स्टेबिलिटी देखेंगे मेरे हिसाब से। लास्ट ईयर डायमंड के रेट में काफी कटौती हो चुकी है। अबाउट 15 to 20% के अंदर प्राइस गिरे थे। लेकिन ये साल कीपिंग इन माइंड द डिमांड एंड सप्लाई, मेरे को लग रहा है कि ये साल रेट ज्यादातर स्टडी रहेंगे। ज्यादा उछाल तो नहीं आएगा लेकिन स्टडी रहेगा रेट। शुभांकर सिंह सर, आपसे अब मेरा सवाल होगा, गोल्ड मार्केट में किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्केट का अगर ग्राउंड लेवल में डिमांड का बारे में हम लोग देखें तो अभी मार्च महीने तक वेडिंग सीजन फुल चालू रहेगा। मार्च के बाद फिर 5-6 महीना उस हिसाब से कोई वेडिंग्स रहेंगे नहीं। तो जैसे हम लोग 15 दिसंबर से मिड जनवरी तक थोड़ा मार्केट में कंपैरेटिवली स्लो डाउन देखे थे, बट फिर अभी वेडिंग का जो भी बाइंग है वो फिर से चालू हो गया। गोल्ड का रेट भी 1 दिसंबर में जंप हो गया था, उसके कारण बहुत सारे लोगों का परचेसिंग वो लोग पोस्टपोन कर दिए थे। तो जनवरी फरवरी में वी आर होपफुल दैट डिमांड रहेगा। और उसके साथ साथ अभी प्लानिंग फॉर द इंडस्ट्री सामने अप्रैल में मई में अक्षय तृतीया आ रहा है, तो वो भी एक बड़ा बाइंग सीजन रहता है और पूरा प्लानिंग उसके लिए इंडस्ट्री चालू कर दिया है। तो एक है कि अप्रैल में इलेक्शन भी है, फिर जून जुलाई अगस्त में उतना वेडिंग है नहीं, तो हम लोगों को पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है विद दी थोड़ा सामने में जो भी इवेंट्स आने वाला है शादी के सीजन के बाद। सोमा सुंदरम सर, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा, क्या गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहिए? आप इस पर क्या कहेंगे, ताकि जब फुल बजट आए उस पर सरकार इस पर विचार करे? इस पर आपका जवाब क्या होगा? You see, it is always good to have a low import duty. I mean, nobody can argue against it. Lower duty means everybody will be compliant, there will be no issues of smuggling, etc. But we also have to understand that there is a certain context, economic context. We use dollars, it impacts our CAD. Our exports are not that high on gold. Therefore, there is a certain charge. So then comes the question, what does this high duty do? Clearly, it is leading to a lot of irregular practices. It is affecting the compliant players. There is no doubt about it. But then the question also arises, why is it that the government industry is not able to stop this kind of gold from coming in? After all, it is not being sold by a different set of people. It is sold by a very small section who are able to make these gray market integrate with the mainstream. Now, how can the industry avoid it? That's a question to be asked. Second question is 15% duty really a consumer issue or a trade issue? Are the consumers asking for a drop in duty? The consumers want low price, but over a period of time, the consumers want gold price to go up. So duty is not a consumer issue. It is a trade issue. Therefore, when you say it is a trade issue, can the trade not come together to stop this menace? Is the question that is being asked. Having said that, therefore, you cannot put everything saying because the duty is high, it will happen this way. Duty is high, then why don't we completely move into a digital payments and things like that and weed out this entire gray market? Is it possible for the industry to do it? So these questions will arise. Therefore, yes, my point is, will there be a reduction? I can't say that. Should there be a reduction in the long term? Yes. Will it happen in 2024? I am not very sure. बिल्कुल, इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जरूरी है, ताकि ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी से स्मगलिंग को भी बढ़ावा मिलता है और ड्यूटी कम होने से मार्केट कॉम्पिटिटिव होता है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से आप खुद को प्लेस कर सकते हैं। शुक्रिया मितेश जी आपका, सोम सुंदरम पियर साहब आपका, और साथ ही शुभांकर सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।